Yeah, good evening, sir. Okay, I would like to introduce myself. I am Dr. Neil. What sir has said, I feel humbled. Basically speaking, I am here to change lives. I am transforming lives. And today, 7 countries I am regularly counseling people other than India. So I start my work morning 10 and it goes till night 1:30. That's a regular routine here. Now, the visit to my own hospital, Vedanta Healthcare, has reduced a lot of people because of the COVID. Now, other than that, work over online is going on. I'm creating some online modules. So when Sir has requested that I should be addressing you divine souls, with Sir, I can't say no to him for anything. So I feel humbled. So if you people could kindly ask me some questions or any challenges you are facing, so I will start somewhere from that. If you can tell your names and introduce yourself, that will give me an idea of people what they are आप स्क्रीन doing. पर अपने एक्चुअल नाम डाल दीजिए. अभी जो आपने छोटे छोटे नाम लिखे हैं ना, एक्चुअल नाम लिख दीजिए ताकि he can see your names also. नहीं तो that question mark name will be there. हरमीत, आप भी नाम सही कर दीजिए. तब अपने नाम सही लिख दीजिए. चेतना एक का नाम दिखाई दिया. Yeah, I'm not able to see any names or any people. No pictures I'm able to see. You are not able to see pictures? No, I'm only able to see your picture now. नहीं तो आप उसमें ऊपर जाइए. उसमें जो व्यू है ना, एक तो वो वाला आपका सब ऐसे कैसे हो सकता है? Hello? I'm only seeing your picture. अच्छा. You've got the settings in that where if you this is a pin view. Just unpin myself, you will see all. This is a pin view. This is a pin view. Unpin my view, then you will see all. Are you able to see now? ऊपर आइकॉन बना होता है उसमें. स्पीकर व्यू है और एक उसमें आपका जो है दिस इज ग्रिड व्यू है आपका इसमें. This is the one. The other one is your options are there. One is speaker view, one is pin view. The participants करके right में नाम आ रहा हाँ तो उस है. पर क्लिक कर दीजिए. उस पर क्लिक कीजिए. सभी पे. हाँ सब. No. I'm not getting what is to be done. Invite करके है. नहीं ये व्यू पर है. ये इसका व्यू मोबाइल में. एक मिनट, मेरे मोबाइल में भी है. I'll just see how it looks at. Hello. Yeah, audible है आप सर. चेतना audible है सर. मैं सुन नहीं रहा लग रहा है. चेतना unmute. अनम्यूट से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. वो उन्होंने वॉल्यूम कम कर रखा होगा. वॉल्यूम चेतना का वॉल्यूम. I'm able to hear all. अच्छा सर, आपको उसके व्यू पर नहीं दिख रहा. व्यू का वैसे एक उसमें आइकॉन है. आपका लगता है वो वाला दब गया जिसमें आपको मेरा दिख रहा होगा. आपने मेरे पर क्लिक कर दिया होगा. तो ये आप उसमें अभी 4 फेसेस दिख रहे हैं. एक फेस खाली सर का टॉप दिख रहा है. अच्छा, वो आप स्क्रॉल कीजिए तो बाकी दिखेंगे. स्क्रॉल कीजिए, स्क्रीन स्क्रॉल कीजिए, दिखते हैं. ओके. स्क्रीन स्क्रॉल किया आपने? अब दिख रहा है. Only 4 pictures are there. It is not when you scroll the screen you will see. When you scroll the screen you will see the next. स्क्रीन स्क्रॉल कीजिए तो आपको दूसरे दिखेंगे. अच्छा, ओके. दिख गया? फाइन या. हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी है, मोबाइल पे ऐसे ही काम करता है. ठीक है, चलो बढ़िया. I will learn it. हाँ जी. So you can start with yeah. I think आप जिसका नाम पूछ रहे हो उसी से सीधा देख रहे हो, उसी से पूछो सीधा. They won't speak and you can start the talk. Okay, there is प्रियंका करके नाम लिखा हुआ है. कौन है प्रियंका? हाथ उठा दीजिए. हाँ जी प्रियंका. ओके या. आपका खाली हेड का यहाँ से दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है. Okay, now I am able to see. Yes, thank you so much. Yeah, ask me something. Let's start conversation. Just ask whatever is in your mind. If you people are feeling difficult because Gupta sir is there, तो फिर then मैं उनको request करूँगा. हाँ, I'll move out.
I'm logging off for the meeting, so you can continue with the meeting. I'm ending the meeting from my side. Okay. Yeah, please, so नहीं that नहीं they ऐसा can be कुछ नहीं open. है अरे नहीं. नहीं नहीं Then ऐसा कुछ none of you are speaking then. Okay, tell me, ask me anything related to the, I can tell you which all areas I can address, training and development, how to communicate with people, the stress management, and whenever there is a non-clarity in life, when you feel that it is difficult to imagine beyond, and anything with your thought process, I can address it. yeah. Any challenges you are facing, बोलिए. अभी तो प्रॉब्लम है कि अभी सब कुछ शट डाउन है. हाँ. आपको आवाज आ रही है ना सर मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए. शट डाउन है बट हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं. जो भी काम है डेली हर कोई कर रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि आगे का कुछ पता नहीं है. जो भी हम कर रहे हैं वो पोजीशंस आगे कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, कंपनी के साइड में ऑन होल्ड रहेगी, या जो अभी कोविड-19 की वजह से कंपनीज का बुरा हाल हो सकता है. तो मतलब आगे रिक्रूटमेंट कैसा रहेगा? Okay, you are able to hear me now, all of you? Yes. Okay, so shall I give an answer? Yes. Okay, now listen to me very carefully. मैं हिंदुस्तान की फौज में अफसर रहा हूं. Okay, and I have fought war in IPKF, Indian Peacekeeping Force का एक हिस्सा रहा हूं. श्रीलंका में 1.5 साल लड़ाई लड़ी. You had no idea शाम को आपका डेड बॉडी वापस जाएगा या आप खुद वापस जाओगे. And we used to be there in the forefront fighting war, which was a very difficult situation, without having any communication with family. Those days mobile वगैरह system नहीं होते थे. VHF में through various forces वहाँ पे because combined command होता था. तो one thing I have learnt in life, don't think too far beyond. What is the karma in hand? आज आपके हाथ में क्या है? क्या करना चाहिए आपको आज? इरफान पठान जी चले गए कि नहीं? इरफान खान चले गए कि नहीं गए? He had any idea which date he will go? Had he any idea कि कब जाएंगे? No. बहुत सारे plans बनाए थे, है ना? All of us are going through that. I am one of the fortunate souls who could spend some very personal time with him. So मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं सेलिब्रिटी कोच हूं, बहुत सारे टॉप ग्रेड बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस का कोच हूं आज की डेट में. एक तो देखिए किसी को फ्यूचर नहीं पता, बट वी कैन सी ऑप्टिमिस्टिकली कि आज जो कर्म है इसको अच्छे से करूं क्या. आज अगर मैं टूट गया, आज अगर मैंने अपने काम ठीक से नहीं किए, तो कल जब अच्छा वक्त आएगा तो तब तक काफी टूट गया होगा. तो आपका जो तकलीफ है ये सबके साथ हो रहा है. बिलीव मी, लव योरसेल्फ. आप जो सोच रहे हैं आप बुरे नहीं हैं, आप अलग यूनिक नहीं है, सबको तकलीफ है, आज हर एक को परेशानी है. तो व्हेन ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू डिफिकल्टी, मैं एक ही मंत्र देता हूं एज ए साइकोलॉजिस्ट, फोकस ऑन टुडेस. कल सुबह अगर उठ गए, कल सुबह अगर हम जाग गए तो फिर कल की बात करेंगे. सो फोकस 100% ऑन टुडे कि व्हाट बेस्ट आई कैन डू. बिकॉज लिटरली वार जैसी सिचुएशन है, वार से भी बुरी सिचुएशन है. वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो. वी एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो. सो टू मेनी थिंग्स वी नीड नॉट प्लान, बट आज अपने काम को कीजिए. मेरे पास रोज कम से कम 4 कॉल आते हैं कि सर हमारी कंपनी बंद हो गई है, और कंपनी बंद हुई है इंडेफिनिटली कि दोबारा शुरू होगी या नहीं होगी पता नहीं. ये रियलिटी बता रहा हूं. तो आर वी नॉट मोर फॉर्चुनेट देन देम कि आज एटलीस्ट हमारा सांस चल रहा है, वी आर ब्रीदिंग एंड वी हैव समथिंग टू डू. सो अगर इतना काइंड हो के हम अपना काम किए तभी जाके मेंटल पीस बना रहेगा. अदरवाइज वी विल गेट इनटू लॉट ऑफ स्ट्रेस. तो फ्यूचर को थोड़ा सा होल्ड कीजिए, अभी मत सोचिए. आई विल टेल यू अ गर्ल फ्रॉम बैंगलोर. शी गॉट हर PR ऑफ कैनेडा. शी वाज सपोज्ड टू लीव दिस मंथ. नाउ दिस हैज हैपेंड 3 months बिफोर, and by the time she prepared, the lockdown happened. Now coming this entire year nothing may happen.
ऐसे सिचुएशन में आप उसको क्या बोलोगे? फॉर हर द रियलिटी इज वेदर PR विल बी रिवोक्ड, वेदर शी विल एवर बी एबल टू गो. तो कई तरह के चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं. सो बी काइंड टू योरसेल्फ, लव योरसेल्फ एंड बोलिए कि जितना हो सकता है मैं शांति से अपना काम करूंगी. इसके अलावा मुझे और कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दिखता है कि और आगे चल के क्या होगा. So do your best and see, let's see what happens. We are all one family. Yes, बोलिए. Hello. Hello. हाँ बोलिए. Yeah, thank you, sir. Anything else in your mind? Nothing. Anything anybody else would like to ask? Yes, friends. Stress management. Stress management. Okay. स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिंपल प्रिंसिपल है. कहां से आ रहा है स्ट्रेस, इस बारे में पता कीजिए. इज इट कमिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस है? इज इट कमिंग बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स? तो अगर आप मुझे एग्जैक्टली बता सके कि ये स्ट्रेस आता कहां से है, आ कहां से रहा है, बिकॉज स्ट्रेस कैन हैपन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अगर उसका एग्जैक्ट रीजन पता चले तब जाके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हम एग्जैक्टली साइंटिफिकली काम कर सकते हैं. नहीं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इतना बड़ा सब्जेक्ट है, जो चीज आपको स्ट्रेस दे रहा है किसी और को शायद उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, फोकस ऑन योरसेल्फ. और खासकर आप लोग सब फैमिली वाले अगर हैं, फैमिली के साथ में लव एवरीवन, और सभी फैमिली मेंबर्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि इस समय हम एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहेंगे. All of us must love each other. क्योंकि जब बार बार एक ही चेहरा देखना पड़ता है, एक ही चेहरा देखना पड़ता है, बार बार वही लोगों के साथ रहना पड़ता है, so sometime unknowingly हम हर्ट करते हैं एक दूसरे को. और जब हर्ट करते हैं तो हर्ट से निकलने का रास्ता नहीं, क्योंकि उसी घर में रहना है. पहले क्या होता था, अगर कुछ झगड़ा हो गया तो हम ऑफिस निकल गए, कहीं और चले गए, कहीं और जगह पे काम कर लिया, तो हम दिन भर में भूल जाते थे. दोस्तों यारों से मिल लिया, सहेलियों से मिल लिया, भूल गए. अभी ये बहुत जरूरी है कि रोज रात को सोने के पहले, मैं हजारों फैमिलीज के साथ काम कर रहा हूं, हाथ पकड़ के प्रॉमिस करें कि हम बहुत खुश हैं, वी आर लकी, वी विल नॉट हर्ट ईच अदर. और सुबह उठते ही एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे कि वी विल लव ईच अदर, वी विल नॉट हर्ट. और जिस घर में बच्चे हैं, वी हैव टू इग्नोर मेनी थिंग्स. अभी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा तुमको ये करना है, पढ़ाई, ये सब चीज पे ध्यान मत दीजिए. तो इंपॉर्टेंट थिंग इज जान है तो जहान है. अगर हम बच गए, if we are able to come out of it, perhaps then is the question of making some life. तो अभी थोड़ा 5% कम आएगा, 10% कम आएगा, कम पड़ रहा है, वो भी चलेगा. आप लोगों के लिए भी यही एडवाइस है, डोंट वरी टू मच. मेरे पास कल एक लड़की का कॉल आया था, सर मेरा पेट बाहर आ रहा है. Now you imagine, यार इस समय अच्छा है, आप अच्छे से खा रहे हो, पेट कल अंदर चला जाएगा. जब बाकी सब चीजें सब ठीक ठाक हो जाएंगी तो यू विल बी कंफर्टेबल विथ. तो अभी बहुत ज्यादा एनालाइज मत कीजिए अपने आप को, बी कंफर्टेबल अपने आप को जिस तरीके से आप हैं. लव योरसेल्फ. मैं एक ही चीज कहता हूं, अपने आप को प्यार कीजिए और खूब खुश रहिए. दैट इज द सर्वाइव इन दिस टाइम. एंड बहुत सारी नई चीजों को शुरू कीजिए. थोड़ा अपने हॉबीज पे, कुछ लोगों ने पेंटिंग शुरू किया, ड्राइंग शुरू किया, कुकिंग पे कुछ, और कुछ लोगों ने योगा मेडिटेशन ज्वाइन किया है. तो आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू, डू समथिंग विच यू लव, जो आपको पसंद हो. स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका यही है, रूल यही है कि डोंट इनवाइट स्ट्रेस. जहां तक हो सकता है अवॉइड करें ऐसी चीजों को करने के लिए, ऐसी चीजों को बोलने के लिए जिससे कोई आपको तकलीफ दे या किसी और को परेशानी हो. एनीथिंग एल्स? बोलिए. हेलो. हेलो. हाँ, मेरे साइड से हो गया सर. अच्छा, कोई और कुछ पूछना चाहता है?
आप जो अभी काम कर रहे हैं उसमें कोई परेशानी हो रही है? किसी तरह का उससे रिलेटेड कुछ चीज अगर आप पूछना चाहें, क्योंकि मैं बहुत कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता हूं, तो वर्क ओरिएंटेड काम में कुछ अगर तकलीफ हो? परेशानी तो कुछ नहीं है सर। यू आर एंजॉयिंग योर वर्क? हाँ सर, 9 घंटे एक दूसरे को देखते रहते हैं हम सब। दैट्स अ वेरी क्यूट आंसर। यस, ऑफिस में भी इतना नहीं देखते होंगे जो अभी देखते रहते हैं जितना ना? जूम पे देखते क्योंकि हैं। हर एक का अलग अलग ऑफिस है, तो इतना नहीं देख सकते ना एक दूसरे को जितना अभी देख सकते हैं। So, हर कहते हैं ना, एक डॉक्टर नेपोलियन हिल हुआ करते थे जिन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें एक प्यारी सी चीज लिखी, एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स अलोंग विथ इट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। उसका मतलब है हर तकलीफ के पीछे कुछ ना कुछ एक अच्छाई और एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग एक दूसरे को देखते रहते हो, है ना? थोड़ा सा अपने घर में हो इसलिए थोड़ा सा फ्रीडम भी ज्यादा है, लेकिन एक ही चीज कहूंगा, वर्क को प्यार कीजिए, अपने काम को प्यार कीजिए। काम को प्यार करने का बेनिफिट ये रहता है कि जब आप वापस जाएंगे लॉकडाउन के बाद, तो आपको कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा कि एनीवे आई वाज वर्किंग। मैं लकी हूं, मेरे आईटी, बहुत सारे आईटी के फ्रेंड्स हैं जिनको ऑलरेडी काम है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। फॉर देम एक ही चीज बोलते सर, पक जाते हैं एक ही जगह बैठे हुए। आई से कि यू आर लकी, एटलीस्ट काम है तुम्हारे पास। कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोगों के पास नौकरी नहीं है, कुछ लोगों को फ्यूचर भी नहीं पता। अभी खासकर जो ग्रेजुएट्स निकले हैं, कंपनीज अभी शायद हर एक हायर करेंगी नहीं करेंगी, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड। सो वी आर लकी वन वे कि कुछ तो काम है, और जिस किसी फील्ड में काम है उस पर फोकस करें। और मैं डेफिनेटली कहूंगा इस दौरान थोड़ा परिवार के साथ रिश्ता अच्छा बनाइए, है ना? तो हंसिए, मस्ती कीजिए, एक दूसरे को छेड़िए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा दोबारा छेड़ने का। तो एक दूसरे के साथ मस्ती कीजिए, एंजॉय योरसेल्फ। सर ये काम तो हमारे सर पूरा कर देते हैं। दैट इज वंडरफुल। वो जरूरी है, क्योंकि जितना हम हंसेंगे ना, स्ट्रेस निकलता जाता है और उतना एक अपनापन लगता है। क्योंकि ना बैठे बैठे एक ही जगह पे, एक ही वातावरण में, वी आर नॉट यूज्ड टू इट, यू नो। बिल्कुल सर। तो आप जरा सा सोचिए, जानवरों को कितनी तकलीफ हम देते हैं जब जू में डाल देते हैं उनको। So today you realize तकलीफ देते कई लोगों को, है ना? तो आप तो यहाँ पे ज्यादातर लड़कियां दिख रही हैं सभी, तो आप सोचिए जब आप अपना घर छोड़कर दूसरे के यहाँ जाते हैं तो इसी एक नए वातावरण से गुजरना पड़ता है। सो फॉर ऑल ऑफ अस, चेंज इज ए चैलेंज। सबके लिए एक चेंज एक चैलेंज है। मैं 1.5 साल यूएस में रहा, शुरू में 3 महीने तकलीफ हुई जब अपने माहौल से निकलकर आप एक नई जगह पे जाते हैं। तो हर एक को एक चेंज एक चैलेंज देता है, बट लेट अस बी हैप्पी, लेट्स बी काइंड। और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। तो इफ यू आर एबल टू स्माइल, अगर आप खुश हैं तो लाइफ निकल जाएगी। और ये कुछ दिन की बात है, वेरी सून द लॉकडाउन विल एंड। लेकिन लॉकडाउन एंड होने के बाद क्या ये मुस्कुराहट बनी रहेगी, इसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। कि दैट आई एम वेरी हैप्पी। इसलिए रोज मैं लोगों को कहता हूं कि मैं खुद करता हूं, थैंक जिस पे आपका विश्वास है, जिस किसी पे आपका विश्वास है उनको धन्यवाद दीजिए कि आज मेरे पास क्या है उसके लिए। So attitude of gratitude will help us a lot in progressing and making a better life. तो खूब थैंक्स बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए कि आज है हमारे पास, एटलीस्ट खा पी पा रहे हैं। बहुत तकलीफ में है लोग बाहर, मेनी पीपल आर सफरिंग, क्योंकि मैं इंटरनेशनली कनेक्टेड हूँ, बहुत तकलीफ में। कल एक डॉक्टर ने यूएस से कॉल किया था, वो बेड रिडन है, कोविड की पेशेंट है, बेड रिडन है, शी इज अनेबल टू मूव, ये हालत में है। तो बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं। तो आई से आई एम फॉर्चुनेट, सो कीप टेलिंग, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ, धीरे धीरे आगे का रास्ता खुल जाएगा। दैट इज हाउ आई सी लाइफ। एनीथिंग एल्स आप लोगों के दिमाग में कुछ है? आप लोगों के दिमाग में कुछ और बात? नहीं। एनी अदर जनरल क्वेश्चन? कोई जनरल क्वेश्चन नहीं हो तो गुप्ता सर को इनवाइट कर लीजिए।
आप लोग उनको इनवाइट कर पाएंगे बैठे बैठे? कॉल कर लीजिए नहीं उनको, सर, बोलिए। ज्वाइन करेंगे ना। सर होंगे यहीं पे, सर सुन रहे होंगे। हाँ जी सर, ऐसा है, कमिंग ऑन टू सर्टेन पॉइंट्स, जैसे एक एक के मैं पॉइंट्स आपके बेनिफिट के लिए देता हूँ। ऐसे लेट मी इंट्रोड्यूस यू। रोशनी इज फ्रॉम बैंगलोर, शी इज Okay. फ्रॉम बैंगलोर ऑफिस, ओके, Okay. बैंगलोर ऑफिस ऑन द वे, एंड सिमरन वाज टू जॉइन एट, सिमरन हैज नॉट जॉइन टुडे। सो Okay. में जैसे प्रियंका स्पोक टू यू, प्रियंका इज द ओल्डेस्ट पर्सन, 5th year with me now, okay, Okay. and fortunately today is an anniversary also, तो मैंने कहा कि अच्छी चीज सुनने के बाद भले ही आप जाओगे। बधाई हो आपको, बधाई हो। पहला क्वेश्चन भी थैंक यू सर। पहला क्वेश्चन भी उसने स्टार्ट किया, अच्छी बात है। अभी देखिए, आई ऑलवेज टेल देम वन थिंग, सी व्हेन आई 21st of March when we decided we will continue with this trend of working from home on Zoom, so none of them was opposed to it. I said take the phones with you, take the laptops with you and start the work. अच्छा, अभी एडजस्ट तो डे 1 से सब हो गए हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा बीच में इनको इतना भी रिलैक्सेशन है कि 5 मिनट अगर उठते हो तो चैट में लिखो 5 मिनट के लिए जा रहे हो, और कोई भी घर का काम है करके आके बैठ जाओ, 5 मिनट एक्सटेंड कर लो। नॉर्मल आपको जो ब्रेक्स है ऑफिस के हिसाब से लेते रहो, उसमें भी एक्सटेंड करना है, किसी उस वक्त नहीं लेना, आधा घंटा आगे लेना है, पीछे लेना है, वो भी चलेगा, क्योंकि इतनी रिलैक्सेशन घर के लिए थोड़ा दे रहे हैं। एंड वर्क विद सी, एंड दे आर ऑल सेंडिंग देयर वर्क वेरी नाइसली इन द इवनिंग, द रिपोर्ट्स आर कमिंग, एवरीथिंग। टीम ऑफ गाजियाबाद इन नॉर्थ, that is Anjali, that is Chetna, and that is Surbi. These are 3 people from Delhi side. Okay. They we just started in December. Gradually they are picking up the work style also, because they are old in the system. I never look for figures what they are achieving, because that's very minuscule compared to, because I feel it's an investment. So I never look कि भाई मुझे अभी वहाँ से business वैसा आना चाहिए, but they are putting their efforts and we are hopeful कि भाई जिस तरह का काम अभी हम लोग सबके पास ऐसा काम आया हुआ है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे हमारे पास हॉस्पिटल्स है, हेल्थ केयर है, काम है हमारे पास, और वो टेलीफोनिक भी कई जगह हो रहे हैं। एंड इनको मैंने एक ही चीज कहा है कि आप टेलीफोनिक के साथ में सब कैंडिडेट्स को रोक के साथ में रखिए, कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा आपका इंटरव्यूज होने हैं, उसमें से 50% वाले कैंडिडेट्स रह जाएंगे। कई जगह कंपनीज उस वक्त शायद लॉकडाउन के बाद ले ना ले, मैंने कहा लेकिन ये 50 का 30% काम भी अगर हो गया तो हमारे लिए उतना फिगर सर्वाइवल के लिए काफी है। अभी हम अचीवमेंट नहीं देख रहे हैं, सर्वाइवल देख रहे हैं, क्योंकि द टाइम इज नॉट टू सी अचीवमेंट। आई सेड somebody contributes instead of lakh to 20,000 or 30,000 also, I have never said before a bad thing, I will never say right now also. Point is I should be able to give you salaries, that's my main target right now. So what I have told them, अभी इसमें देखिए, मैं I'll just give example, Ashwini is on the family way, but she's continuing till the, because अभी lockdown है, Pune already बंद है, she's from Pune, Priyanka is already in Pune. So ये दोनों, अश्विनी को मैंने, जैसे आज मैं फिगर्स में नहीं देखता हूँ, मैं इनसे बार बार कहता हूँ put your best foot forward, give the best efforts, results delay हो सकते हैं लेकिन forever forbidden नहीं होंगे। So अभी इसका she is maybe going under a lot of stress because अभी 8 घंटा 9 घंटा बैठना मुश्किल होता है। तो that day she was saying someday, I said no issues, आप 1 घंटा दोपहर में रेस्ट कर लो, आप वो चाहो तो एक्सटेंड कर लो, नहीं तो आधा घंटा आप कट कर लो अपने काम में से, उसके लिए हम पैसे नहीं काटने वाले हैं। बट आप काम में अगर लगे रहे हो, आपका दिल लगा रहेगा, और आपको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रही है तो मत करो। अगर आप बैठ सकते हो कर सकते हो, बट शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, शी केम बैक एंड शी इज वर्किंग। सो दिस इज समथिंग दैट आई से आई वुड लाइक टू यू टू आल्सो। अभी इसमें देखिए मृणाली इज प्रेग्नेंट, शी इज ऑलमोस्ट, उसका भी 2-3 महीना रह गया है। इसके अलावा इफ आई सी हियर, बाकी किसने डिस्क्लोज नहीं किया तो उसका मुझे पता नहीं है, बट एनीहाउ यहाँ पर 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा है कि आप काम इस तरह से अपना लो ना जैसे आप अपने घर की तरह कर रहे हो, तो आप उस वक्त ये सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं, टाइम स्लॉट्स, छुट्टियां, सब कुछ। और अभी तो वर्क फ्रॉम होम है वैसे भी, घर में कौन सा अगर छुट्टी का भी, हाँ अगर एकदम बीमार हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई 1 दिन 2 दिन बीमार रहा है जैसे, और 1-2 दिन किसी को कोविड का खतरा था सोनम को, तो हॉस्पिटल दिखाने गई, बीच में फिर बहुत बीमार थी, तो एवरीथिंग वाज, आई सेड इंस्पायर्ड। इसमें भी आप स्ट्रेस मत लीजिए। I always felt that I should de-stress them in all these things. What do you say in all these situations? They should, the way they should take it. Yes. How they should take it. I have been saying my word and they are taking it, but how they should actually take it. हो सकता है बॉस है इसलिए हमारे आगे बोलते नहीं है, लेकिन हो सकता है ये लोग ऐसे सोचते हो। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमेशा जो है we show our perspective, है ना, हम अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं। इंडिविजुअल को अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने हिसाब से क्या करना है वो देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एज ए सीनियर पर्सन आप उनको गाइड कर रहे हैं। आई एम हियर नाउ गिविंग माय पर्सपेक्टिव, बट मैंने देखा है विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ 3 decades इन हीलिंग पीपल एंड लीडिंग पीपल, कि अपना पर्सपेक्टिव खुद का भी देखो कि मेरे लिए ये 4 बातें जो बताई गई है, इनमें से बेस्ट अडेप्टेबल क्या है, कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा। इफ आई कैन यूज दैट, मेरा लाइफ अच्छा हो जाता है। तो कोई चीज एक्स के लिए जो बहुत सूटेबल है शायद वाई के लिए सूटेबल नहीं होगी,
जो वाई के लिए सूटेबल है तीसरे के लिए नहीं होगी सूटेबल। तो आपका अपना दिल किस चीज में कंफर्टेबल है। कुछ लोगों को हर 1 घंटे के बाद 2 मिनट के लिए बॉडी को हिलाना पड़ता है। मैं कहता हूं कर डालो भाई, क्यों तकलीफ उठा रहे हो। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, क्योंकि स्ट्रेस के साथ काम करने में एफिशिएंसी कम होती है। ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन है, ये कोई नई चीज नहीं है, प्रूव हो चुका है कि स्ट्रेस के साथ अपनी एफिशिएंसी कम होती है। सो स्माइल आउट, लाफ एंड टेक ब्रेक्स विच आर इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आपको वॉशरूम जाना है तो जाके आइए, टेक ब्रेक्स। स्ट्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि मेक योर बॉडी कंफर्टेबल, खासकर जब बैठ के काम करना हो एक ही एनवायरनमेंट में। यू हैव नो चेंज, यू कांट मूव अराउंड मच। तो पॉइंट है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर जॉब। व्हेन यू लव योर सेल्फ देन ओनली यू कैन लव योर जॉब, एंड थैंक गॉड दैट यू हैव ए जॉब टुडे, एंड देन डू व्हाट बेस्ट ब्रिंग्स आउट ऑफ यू। आपके अंदर का बेस्ट जो आ सकता है, आपकी बेस्ट पर्सनालिटी, बेस्ट सिचुएशन जो आपके अंदर से आ सकती है, उसको प्रोजेक्ट कीजिए। आपको भी अच्छा लगना चाहिए कि यार इस टफ सिचुएशन में जब इतने सारे लोग तकलीफ में हैं, मैं बेहतर कर पा रही हूं। आई एम एबल टू डू नाउ। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और खुद को रोज थैंक यू बोलिए। ग्रेट, आज का एक दिन आप लड़ाई लड़े, यू आर ए फाइटर। इस तरह के जो सेल्फ टॉक होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। It's very, very powerful. And thank all the people who are helping you to be here today, to be successful in life, to be creating something better. तो ये जरूरी है कि हम बहुत शांत रहें अंदर से। सर ने तो इतनी अच्छी बात कही कि वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा एफिशिएंसी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आपके नंबर्स को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत कम लोग हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, दे क्वेश्चन वेरी टफ ऑन नंबर्स। So when he is so supportive, I can only say, you become kind to yourself. I will do my best when my company is giving me so much of support. So that is the way I have seen people doing very well. A lot of IT people are doing very well. They say we are so fortunate. हमारे पास हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि आज हमारे पास काम है। तो they thank even parents को। हमको आईटी लेने के लिए कुछ पेरेंट्स ने फोर्स किया था आईटी लेने के लिए। आज समझ में आ रहा है कि वो पापा मम्मी की बात सुने तो अच्छा लग रहा है। तो इट्स ए क्वेश्चन हाउ यू सी लाइफ। और क्या ये पहला चैलेंज है आप लोगों की लाइफ का? नहीं, 1 लाख चैलेंज और आने वाले हैं, 1 लाख कम से कम। तो अगर आज हम जीत गए तो कई और जीत की तरफ चले जाएंगे, और आज अगर टूट गए तो आगे और कई मौके आएंगे जब टूटना पड़ेगा। दैट्स व्हाट माय फीलिंग इज सर। अच्छा नील सर, शिवानी ऑडिबल? शिवानी इज ऑडिबल? हेलो शिवानी, ऑडिबल? शिवानी अपनी वॉल्यूम ऑन, 1 मिनट। शिवानी आई थिंक वॉल्यूम उसका, शिवानी ऑन द वॉल्यूम। कई लोग म्यूटेड हैं। अरे म्यूटेड में इनको फिर भी आनी चाहिए, लेकिन मैं वो हैरान हूँ। अनम्यूट ऑल मैं कर दे रहा हूँ उसमें। तो म्यूटेड में सर आती है आवाज? आती है। शिवानी अभी सुनाई दे रहा है? शिवानी आपको सुनाई दे रहा है? चेतना सुनाई दे रहा है? ठीक है। अच्छा, like there are people who have got children, like Chetna has got a child who's quite big, Shivani has got a child who is very small, very naughty, and पूरे दिन में पूरा हमको सीन देखने का और एकदम अच्छा लगता है देख के, the way he is after her. So I always tell her one thing, she is a child, she has seen mother so much long in house she has never seen, so try not to scold her, और थोड़ा उठा के उसको प्यार करके पति को सपोर्ट करके आगे बैठ के करो, और वो भी समझ जाएगी मम्मी काम सीरियसली कर रही है कोई, तो वो समय के साथ वो कॉपरेशन करेंगे। एंड दैट एडजस्टमेंट हैज हैपेंड वेरी वेल। आई थिंक चेतना जी को कोई इश्यूज नहीं है, बिकॉज सन इज ग्रोन अप, तो बड़े बच्चों के साथ इशू नहीं होता है। बट देयर आर पीपल, अभी फैमिली में हस्बैंड है, मैरिड है, तो ऑब्वियसली अगर वो बैठे काम कर रहे हैं, वो भी कॉपरेट अच्छा कर रहे हैं, जैसे मृणाली के केस में है। आई थिंक देन आई सी प्रियंका's केस आल्सो वेरी कोऑपरेटिव, एंड इवन आई सी इन अश्विनी's केस। सो मेनी टाइम्स स्टिल दे वुड बी फीलिंग अंडर अ स्ट्रेस, क्योंकि जब आप घर पर होते हो तो आपको बीच में कुछ बनाने को, कोई बड़े सास की भी सेवा करनी है या कुछ वो भी करना है। एंड आई हैव टोल्ड देम वेरी क्लियरली, आधे घंटे के लिए इमरजेंसी और ऐसी कोई सर्विस के लिए उठना है तो उठ जाओ लिख के, और शाम को आधा घंटा बढ़ा लो। उस दिन नहीं बढ़ा पाओ तो किसी और दिन एडजस्ट कर देना, और वो भी नहीं एडजस्ट हो पाया तो कोई हार्ड एंड फास्ट इतना नहीं करेंगे। और दे शुड एक्चुअली टेक इट, क्योंकि कई बार इतने सीरियसनेस में आदमी से नहीं मैं तो यार 9 से 6 तो मुझे इधर बैठना ही बैठना है, तो इसके बीच में मैं नहीं उठ सकती हूँ। मैं तो यहाँ तक बोला है दोपहर का सबसे कठिन टाइम होता है 3 से 4 बजे के बीच में, 2:30 से 4 बजे, जहाँ नींद बहुत तेज आती है, आपकी आंखें डिस्को करती हैं, लेकिन आप उसमें काम करते हो।
तो ऐसे में अगर आपको 15 मिनट का नैप लेके आना है, 20 मिनट का नैप लेके आइए, फिर बैठ जाइए। वो मुंह धोने से कई बार नींद नहीं जाती है। चाहे 30 मिनट आप रेस्ट कर लिए सिर पर हाथ रख के, और आप आराम से लेट के शव आसन में, उसका उठ के आके बैठ जाइए। बट ये वो लोग में से कोई करता नहीं है। मैं तो बीच बीच में कर लेता हूँ, मैं आके बैठ जाता हूँ। मैं तो रात के 9 बजे तक काम करता हूँ, बिकॉज़ आई हैव अ हैबिट लाइक दैट। तो इसलिए मैं बीच में, अगर मेरे को आधा घंटा होता है, फिर मैं चाय बनाने के लिए उठ जाता हूँ। आज चाय बनाने में नहीं उठा, तो आज मुझे प्रिविलेज अभी तक मिलने वाली है। तो ऐसा इन सबको मैंने ये बात बोला, हाउ दे शुड टेक इट। क्योंकि देखो, मैं बार बार आप लोग ये कहता हूँ, आप मेरी सुनते हो ना, तो घर की मुर्गी दाल बराबर, और हलवाई जब पकवान खुद करता है उसकी औकात नहीं होती है। लेकिन जब आप किसी एक्सपर्ट से सुनते हो कि ये मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, कई चीजों में इंडस्ट्री से हट के बात करता हूँ। मुझे मालूम है सर, आज फिगर्स की लोग बात कर रहे हैं। अभी आपके कॉल से थोड़ी देर पहले जस्ट आपका, मैं चाय पहले बनाने जाने वाला था, लेकिन मुझे डॉक्टर JS खुराना का उत्तराखंड से कॉल आ गया। अप्रैल की सैलरी वो डॉक्टर्स को नहीं दे रहे हैं क्योंकि देयर इज नो बिजनेस। टर्शियरी केयर बिग हॉस्पिटल, मे में ही इज गिविंग हाफ सैलरी एंड देयर आर 2 डॉक्टर्स हु हैव रिबेल्ड। दे से कि नहीं, हम क्यों पूरी नहीं लेंगे। वो बोले सर मैं सही हूँ कि नहीं। मैंने कहा देखो, अप्रैल में धंधा नहीं, जब इंडिगो, गो एयर और स्पाइस जेट नहीं दे रही है, तो आपके 90% डॉक्टर्स मान रहे हैं ना, 80%, तो उनको ही मानना चाहिए। मैंने बोला सर मैं क्या करूँ। मैंने कहा उनको सिंपल नोटिस दे दो, अगर साथ रहना है तो 15 दिन की गारंटी मैं ले रहा हूँ, धंधा हो ना हो। अगर धंधा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तो आई मे गिव फुल, बट 15 डेज गारंटी आई एम टेकिंग। नहीं तो आप फर्स्ट को कल मीटिंग करो, नोटिस दे दो उनको कि 30 तक करो, मैं कैसे भी फटी में ही पूरे महीने की सैलरी आपको दूंगा, आप कहीं दूसरी जगह देख लो। और मेरे साथ हो तो 15 दिन की गारंटी ले लो, क्योंकि मेरे दुख में आप मेरे दुख में शामिल रहो। इट्स बिगेस्ट इमरजेंसी नॉट इवन इमेजिन्ड बाय एनीबॉडी। So when I said all these things, just when I was coming onto my team, there's a lot of things that this team I have given a lot of flexibility. But कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ ये लोग बहुत seriously, कई जगह ऐसा होता है, people work at 8 o'clock, 7:30 in the night. They try to compensate. Ashwini, Priyanka, all. Priyanka, the maximum they start. She starts her day with 9:30, and there are a girl Anjali who's habitual of 9:30 by 10 o'clock in that office, 9:30 from here. तो ठीक है, कंपेंसेशन के लिए मैंने बोल दिया, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन हाउ दे शुड टेक इट एज अ डिसिप्लिन एंड हाउ दे शुड इमर्ज इट विद राइट नाउ वर्क फ्रॉम होम, सो दैट दे टेक केयर ऑफ दैट आल्सो पार्ट, एंड एट द सेम टाइम वेयर अ डिसिप्लिन इज टू बी देयर, डिसिप्लिन आर देयर, बट बीच में डिसिप्लिन ब्रेक भी होता है, तो हम लोग उसमें इतना हार्ड नहीं होते हैं कि फायदा नहीं है, आदमी कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। एंड बीइंग लेडीज दे हैव गॉट कमिटमेंट्स आल्सो। सो व्हाट डू यू से? 100% सर, ये जितना आपने फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, आई मस्ट सैल्यूट यू। This is a very good example of supporting the team, and I'm sure the way you have said, they are also doing their best. I'm a big advocate of taking 20 minutes power nap in the afternoon time. 20 minutes alarm laga ke just lie down. Trust me, it gives you 6 hours of additional energy. And this is practiced by many people, that 20 minutes just power nap. Just lie down, keep an alarm and sleep. You will get so much of additional energy. You will be actually performing better after that 20 minutes. Washing face has helped only 3 to 6% people. That is the statistics says. But power nap helps 100% of the people. So there is nothing wrong. And you are coming back to work. आप वापस काम पे आ रहे हो और अच्छे से. आप तो अच्छा काम करने के लिए वापस आ रहे हो. तो आप सोने जा रहे हो with a purpose कि मुझे 20 मिनट्स के बाद अच्छा फोकस के साथ काम करना है। अगर आप उस मकसद से आप जा रहे हो, तो आप तो खुद के लिए भी एक फेवर कर रहे हो, अपनी कंपनी के लिए भी एक फेवर कर रहे हो कि आप एक्चुअली अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए जा रहे हैं। तो पावर नैप बहुत अच्छी चीज है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी की सर ने बात की, ये माइंड के लिए, फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। जब आप घर में छोटे मोटे कमिटमेंट आ जाते हैं और बच्चे हैं, तो उठना तो पड़ता है। अगर उठेंगे तो आप कमिटमेंट के साथ उठिए कि आई एम कमिंग बैक एंड आई एम गोइंग टू डू माय बेस्ट। मैं वापस आके बहुत अच्छे से काम करूंगा। Then I always हमारे बोलिए सर। I say put on the chat there that you're going for this and this time and probably this time you'll return. तो उससे दूसरों को भी मालूम रहता है आदमी क्यों उठा है। मैंने कहा वो जो टाइम है नेचुरल, जो आपके ऑफ आवर्स है 15 मिनट्स के और प्लस 30 मिनट्स का लंच का, उसके अलावा जो आप ले रहे हैं ये आप कहीं एडजस्ट कर लीजिए। 5 मिनट ले रहे हैं, 10 मिनट ले रहे हैं, 20 मिनट ले रहे हैं, वो आपके लिए भी अच्छा है। काम आप स्पीड से कैचअप कर पाओगे। Coming on to the other thing is there are people who are very creative in this. I talk of Harmeet. She is one, accounts दे दिया पूरा खुद हैंडल कर लेती है, GST हैंडल कर लेगी, आर्टिस्टिक ग्राफिक वर्क दे दिया हैंडल कर लेती है। और अभी एवियाना का न्यूज़लेटर जो आपने बोला है, कल इसको हाफ डे मैंने पूरा दिया है कि उसको डिजाइनिंग में लगा दो, क्योंकि कल दोपहर तक वो निकल जाना है। तो शी इज वन हु टेक्स, उसके बाद कई चीजें शिवानी को आई गिव अ लॉट ऑफ, प्रियंका आई गिव अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कि टीम से कोऑर्डिनेट कर लो। अभी इंश्योरेंस का रिन्यू बाय हैज मेड अस द पार्टनर फॉर द होल ऑफ द नवी मुंबई, बट ऑल इंडिया उन्होंने चार्ज दे दिया। तो अभी इनको मैंने 1 घंटा बोला कि शाम को आधा घंटा या 1 घंटा उसमें दे दो, क्योंकि बिजनेस इतना ज्यादा भी नहीं है कि अभी इतना ज्यादा काम हम लोग ट्रैकर ऑन होल्ड बना के रख रहे हैं कि जो काम होगा आगे भेजेंगे उनको।
तो 1 घंटा इंश्योरेंस के कॉल्स जो करते हो, आप वैसे भी कैंडिडेट कॉल्स करते हो। एंड इंटरनली वंस आई वाज फीलिंग कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। फिर मैंने एक चीज इनसे बोला, अगर तुम्हें नहीं भी सही लगता, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, 15-20 कॉल्स बोल रहा हूँ, कम हो ज्यादा हो, अगर ये मुझे सपोज 50-60 हजार रुपए इंश्योरेंस से भी आ गया तो आपकी सैलरीज में कल मुझे काम आ जाता है, क्योंकि इस वक्त सच पेमेंट्स आर बैडली स्टक, जिसको देना है वो भी नहीं दे रहा है, एंड कमिटमेंट्स आर इंश्योर्ड कि आई हैव टू पे एवरीबॉडी ऑन टाइम, एंड थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो भी मैं सबको देने की कोशिश कर रहा हूँ। EMIs एंड ऑल दोस थिंग्स, इफ आई एम रनिंग अ बिजनेस आई नो इट। तो ये इनको मैंने थोड़ा सा बोला था कि नोबडी सेड नो टू मी एंड एवरीबॉडी डिड इट। मैट्रिमोनी का अपना ऑलरेडी है ही वेबसाइट, देयर आल्सो दे सपोर्टेड मी, एंड थैंकफुली both the things are gradually showing results, started showing results, lot of leads in process. But I told them, this is not your main work, this is only for some time. I'll close it as the lockdown ends, and I will keep a separate team for this thing. Maybe your team can report to you people because you are knowledgeable, but this is not your main work. Your main work is HR का business development, जो आप calls करते हो कि किसी को outsource करना है, सर्विस को नहीं करना है, वो चीज अलग है, क्योंकि वो आप HR के लिए बात करते हो। तो वो तो काम अपना ये लोग आधे घंटे के लिए रोज करते हैं अभी भी, लेकिन वो आधा घंटा मैट्रिमोनी या आधा घंटा इंश्योरेंस को ये थोड़ा टाइम उसमें देते हैं। लेकिन 70% टाइम्स दे वर्क फॉर HR ओनली, कॉलिंग कैंडिडेट्स, अलाइनिंग, सेंडिंग ट्रैकर्स, कीपिंग ट्रैकर्स ऑन होल्ड जो आगे भेजने। तो डू यू थिंक इज द राइट वे ऑफ डूइंग, और दे शुड ओनली फोकस ऑन HR? इवन 70 आई थिंक नहीं, अभी जो आप कर रहे हैं दैट इज अ बेटर वे, क्योंकि थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है ना। एंड सिंस दे नो देयर मेजर फोकस इज ऑन HR, और मेरे पास कुछ और रिक्रूटर्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ जो अभी कॉल्स करते हैं लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ देम आर लेडीज, तो दे हैव दिस स्ट्रगल कि अभी क्योंकि देयर इज नो ओपनिंग विच इज कंफर्म्ड अदर देन हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ ओपनिंग्स कंफर्म्ड हैं। सो देयर आर पीपल हु हैव केप्ट पीपल ऑन पाइपलाइन। सो चैलेंजेस तो हैं, एंड कई बार कैंडिडेट भी बदतमीजी से बात कर लेते हैं बिकॉज दे आर अंडर ह्यूज स्ट्रेस। कई बार 2-2, 3-3 जगह से कॉल आ जाता है एक ही बात पे, तो चैलेंजेस तो हैं सर। आई थिंक ये जो मिक्स आप कर रहे हैं बोथ HR प्लस आपका अदर साइड का, आई थिंक गिव देम दैट फ्लेवर। आगे ये लोग दे कैन मेंटर देयर अदर टीम व्हेन इट कम्स। वो सर सेपरेट टीम डालनी, क्योंकि इनका जो मेजर काम है HR, ये आज मेरे साथ HR एंजॉय करते हैं। आई टेल यू, प्रियंका 5th ईयर में मेरे साथ है, एंड आई कैन आस्क प्रियंका, इफ शी लव्स हर जॉब्स, दैट्स व्हाई शी इज वर्किंग ऑन दिस वर्क प्रोफाइल। अरे ऐसा नहीं काम किसी को मिलेगा, शायद हमसे कोई 3000 ज्यादा भी दे देगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव या उसके बाद भी लोग साथ में काम कर रहे हैं। यस, देयर आर इंसेंटिव्स व्हिच हैव बीन डिलेड दिस टाइम बिकॉज़ ऑफ द conditions which are tough, but salaries are naturally salaries are taken care of, and there are people, creative people who are already working extra style, not only HR, they're good in graphics, so they're helping. I said the graphics is also not your work, only because this newsletter gives us a good branding. ये first time जा रहा है, इसका impact पड़ेगा, और ये क्योंकि आप in house कर सकते हो तो आप भी learn करोगे, नहीं तो मैं बाहर से भी करा सकता था, लेकिन ये एक money saving is, money spend नहीं करना उस तरह से। So that's why I the things certain times that I say the extra responsibility makes you more learned, gives you more sense of accountability कि in organization you are contributing। नहीं तो इसी चीज का मैं कोई बाहर 10-15 हजार देता, 8-10 हजार देता बनाने के लिए, तो वो चीज मैं फिर समझा नहीं सकता जिस तरह मैं आपको 4 बार समझा सकता हूँ, उस बंदे को मैं कॉल करके नहीं कर सकता हूँ। तो ये टीम का सपोर्ट, सब चीजें बहुत अच्छा रहा है अभी तक। एंड नन ऑफ द टीम मेंबर्स, आई टेल यू सर, अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खराब हो गया था सबका, क्योंकि बिल गेट्स ने बहुत समझदारी की है, he suspends the accounts. So what we did, we got a crack version from somebody who is doing remotely and done their systems. क्योंकि बिल गेट्स इंडिया को तो चूना लगा नहीं सकता, इंडिया उसको लगा देगा, क्योंकि कौन 6-7 हजार लाइफ लॉन्ग वर्जन है काम नहीं कर रहा है, तो फिर हमें तो क्रैक वर्जन डालना ही था कि हम काम तो रोक नहीं सकते हैं। बट एवरीबडी, इन्होंने गूगल ड्राइव में अपने फॉर्म्स बनाए, लेकिन काम नहीं रोका, तो दैट इज गुड थिंग। आई लर्न एंड सर लॉट ऑफ लर्निंग्स अभी जो हम लोग देखते हैं, कभी हमने सोचा नहीं था। अभी हमारे पास ऐसे लोग हैं, ये लड़की हैं, कल ये फैमिली वे में जा रही हैं, इनको कल को काम से 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, अभी इसमें क्या, अगर 1 महीने 1.5 महीने का ब्रेक भी ले लिया तो भी दे कैन वर्क फ्रॉम होम। दिस मॉडल इज टॉट अस, or at least they will not be without a job. That is something, and HR is such thing. I am very optimistic. बंदों की जरूरत पड़ेगी selectively, अगर ठीक से हम काम करेंगे तो they will be able to close those positions. Maybe हो सकता है 1,00,000-2 लाख ना करके 50 करे कोई, लेकिन होगा जरूर। Absolutely. So, this way of thinking that I wanted to listen from you, because आपका सर बहुत बड़ा experience, मेरा आप जितना नहीं है। मैं तो 23 साल है, आप 40 साल experience रखते हैं। You worked with PSUs, you worked with private companies like Eureka Forbes. You were the head HR of Eureka Forbes. I met him there. And I have seen the way he is respected in the fraternity. What do you think, the way I am thinking or the way the challenges are is the team all in the right direction in terms of work environment? Yes. Hello. हाँ जी, अच्छा, okay, ठीक है। See, I have spoken to some of my senior colleagues who are still in Eureka Forbes. Okay, majority of the people who are in the frontline sales, they are laid off with a guarantee of bringing them back, because
in this particular situation, they cannot go, majority of the work happens door-to-door sales, correct? They have their retail division, which is doing the sales business. So selling oriented work there, production, everything has come to a standstill, and the employee strength is plus 10,000, which I have myself been taking their direct reporting of 10,000 people. So it's a challenge for them, but they have assured people that we are going to take care of you for 2 months. No incentive, because Eureka Forbes works on incentives, purely on incentives. So salaries are only 40%, 60% is incentive. So, but they said, we have created a kitty, we will take care of that 40% of your salaries, but we'll make sure you are not thrown out, because nobody can leave Eureka Forbes like company for single reason, there is no other opening. And the second reason is it's a very great brand. It's a great brand to work for. So everybody is going through a struggle. So many of the places when recruitment is happening, HR must remain optimistic, because finally the day it opens, everybody will be looking at HR fraternity to support them with manpower, because so many people are leaving. So many people are leaving states, so many people are leaving various places, and so many people may not like to come back. So sourcing is going to be a big challenge. It is going to be a big business opportunity, I can tell you. Sourcing is going to be a big opportunity, because one of the senior guys in Eureka said, we are preparing ourselves to get at least 5,000 new members in team, 5,000. But that is a preparation mentally they are keeping. So HR is going to be under huge requirement of manpower. A lot of people who are working today, they will not like to continue, because they get opening and they will leave back to their state. So there is going to be a vacuum of 1 year approximately before everything gets stabilized. So I personally feel sourcing and HR is going to be a big domain. And also then some head training and development were telling me that there is going to be a lot of motivational training requirements, maybe online, maybe through mentally people will be so keep people, they will be needing. And sir, so getting them back, getting the soldiers back to foot is going to be a challenge. So that domain also is going to be highly in demand, the training part. So resourcing and training and development is a positive field. So your work is not going to end at all. It is going to increase in fact. That's what I always say them. I said, don't be disheartened. कोई कंपनी मना कर रही है या कोई अभी लिया हुआ बंदा भी मना कर रही है, फर्क नहीं पड़ता. उसको आज नहीं कल हमसे जरूरत फिर पड़ेगी. और वो जब देखेंगे हम कंडस इंडस्ट्री 5 साल 6 साल से हैं, तो ये कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है कि यार पुरानी कंसल्टेंसी है. नहीं तो कंसल्टेंसी 2-2 साल में बंद होती हैं. 2 साल इज द थ्रेशोल्ड, मैक्सिमम 3rd year. But 6th year in operation, here only one input is that keep the relationship alive, because abhi ka shayad stress ke karan, pareshani ke karan, some companies may not behave rightly with you. At this moment, agar relationship intact rahe, so the moment they are back to their feet, they will go back to the people who were kind to them, who were right to them. So sometime you may be on the receiving end, you may have to listen to few things. But at this moment, I will feel people who survive the relationship, they will survive business much better later. Absolutely agree, sir. एक सर important question इन सब के लिए, because normally it is said, ladies हैं, second income है, important नहीं है, पति कमा रहे हैं या पति कमाएगा होने वाला. तो ऐसे में what should be their goal and how they should think of independently? Because see, I was talking to one lady, I'm not mentioning the name here. Business is in a trouble in the family, and family needs a support, and she feels she should work. Number one. The other lady I talk here, the family is not so, and she has to work to overall support. She doesn't save for herself. Not naming again. The other I feel so, husband is earning very good, no doubt, but her earnings contribute to certain portions in household course, and this is the way. But many times I tell them one thing. See, my salary can be delayed of 5 days, but I never think that there are people who are having a secondary salary I'm giving them. For me, you are primary. For your husband, you will be secondary. For me, you are primary to be given. That is it. Absolutely. How should they have their goal and thinking? क्योंकि देखिए होता क्या है, इंडिया में एक सोसाइटी में एक साथ सोच है, और आप एक साइकोलॉजिस्ट अच्छा समझते होंगे. आई एम ए गर्ल, अब मैं नहीं कमाऊंगी, पति कमा रहा है, तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता. खुद का गोल भी तो कुछ होना चाहिए करने का. अभी देखो लोग आज YouTube चैनल बना के बैठी हुई लड़की हैं एक से एक, और इतना कमा रही हैं. और कहीं ऐसे लोग हैं जो आज MBA करके डिग्री जो है अलमारी में पड़ी धूल खा रही है, और यार बच्चा हो गया, शादी हो गई, उसके बाद में अरे छोड़ो, और बाद में कभी करना चाहेगी जब कुछ अचानक कमिटी आ गई तो काम किया नहीं होगा, सालों से काम नहीं किया होगा.
तो संभलना भी मुश्किल हो जाएगा। सरकार थोड़ा सब कुछ करती है, हिंदुस्तान है। तो ऐसा है कि क्या गोल होना चाहिए कि सी आज इट इज नॉट ए टाइम कि एक हस्बैंड कमा रहा है तो वन शुड बी, क्या हम लोग का टाइम चले गए कि आज अपनी वाइफ को अब नहीं बोल सकते, वो उठा के जो खाना दे रही है शाम को वो भी नहीं देगी, इसलिए कि अभी तुम काम करो। इज हाईली क्वालिफाइड एमबीए, शी इज ए बीएड एंड पास सीटीईटी ऑल्सो सेंट्रल बोर्ड में, जो बहुत कम लोग पास कर पाते हैं। लेकिन अभी मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता, उसको सुनाई भी नहीं रहा, दरवाजा बंद है मेरा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, आज इनको जब मैं एक बात बोलता हूँ कि आप कमा रहे हो ना, चाहे आपकी कमाई 10, 12, 15, 20, 25 ही क्यों ना हो, आपके हस्बैंड की 70-80 लाख, 80,000 लाख के आसपास हो, लेकिन वो आपको जो 15-16 हजार कंट्रीब्यूशन है तो उसको जरूरत नहीं होगी, वो आप अपने अकाउंट में भी सेव करके रख सकते हो। और जब कहीं मुसीबत आए या कुछ बड़ी चीज परचेज करनी हो या कंट्रीब्यूशन करना हो या कुछ अपने लिए बनाना हो या अपनी सिक्योरिटी करनी हो, तो वो आपके उस काम में आ सकता है। एंड मोर देन दैट यू विल फाइंड योरसेल्फ इन्वॉल्व, और आपको जो कर रहे हो ना, आपको लगेगा यार मैं यूज कर रहा हूँ अपना, मैं भी किसी काम का हूँ, खाना ही बनाना और केवल मूवी देखना ही मेरा काम नहीं रह गया है। वो भी जरूरी है क्योंकि वो मैं घर के लिए इन्वॉल्व हूँ, लेकिन आज पार्टिसिपेटिव में 2 लोग जब कमा रहे हैं तो फर्क पड़ता है, वो 2 लोग में सेटिस्फैक्शन होता है विद ऑल द एडजस्टमेंट्स इन लाइफ, बिकॉज लाइफ इज एडजस्टमेंट। अभी बीच में 20 मिनट उठे, 10 मिनट उठे, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी। व्हाट डू यू से शुड बी देयर गोल इन दिस वर्किंग एनवायरनमेंट? कोविड देखने के साथ में अब किसने कहा मेरा तो बच्चा होने वाला है, अब मैं काम करके बाद में क्या करूंगी, मैं तो बच्चे बिजी होंगे। ठीक है, बच्चा कब तक, बच्चा थोड़ा दिन भर बैठा रहेगा। अब वर्क फ्रॉम होम आपको मिल रहा है तो आप आराम से एक पर्टिकुलर टाइम, बच्चा सोया हुआ काम कर, बच्चे ने आवाज शुरू किया, आपने 20 मिनट जाके बच्चे को दूध पिलाया, फिर सुला दिया। ज्यादा शैतान बच्चा है 2 घंटा खेलेगा बगल में लेटे हुए, उसके मुंह में निप्पल लगाया, अपना काम करते रहे, जितना प्यार करना है उठा के करते रहे आप उसको। अभी किसी की बच्ची 3-4 साल की है, वो इतना उछलती रहती है, कूदती रहती है, लेकिन वो बच्ची को प्यार भी करती है। वो बच्ची, मैं ये क्यों आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन को एलोबरेट करके पूछ रहा हूँ, दे शुड हैव सम विजन एंड गोल इन देमसेल्व्स। ये गोल बहुत बड़ा नहीं कि बस भाई कंपनी खोल ली है, गोल है कि जो आज लाइफ का सेटिस्फैक्शन है, जो आज काम का सेटिस्फैक्शन है, और जो कंट्रीब्यूशन, जो सेविंग छोटी मोटी भी हो, more it's not a saving, it's more of satisfaction, how they should take it. Yes. Okay sir, let me make my views on this clear. I always tell my life is my responsibility. ये एक बहुत बड़ी learning मेरी life की रही है with lot of particularly girls. जितने भी girls purely dependent हो गए हैं emotionally, mentally, physically on their husband. This I tell husband also कि यार अगर कल कुछ हुआ जिसकी कोई गारंटी नहीं है, सच बता रहा हूं, कल रात को आप रहोगे नहीं है, आपका जिसके ऊपर आपका इतना भरोसा है वो आज रात को रहेगा या नहीं, इट इज ए थिंग वी हैव टू एक्सेप्ट। हमें नहीं पता कल क्या होगा। तो आई से कि कम से कम पढ़ी लिखी लड़कियां जो काम कर सकती हैं, दे शुड कंटिन्यू टू वर्क, बिकॉज वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू ए ट्रांजिशन। कल क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, हम में से कौन रहेगा नहीं रहेगा, जिनके भरोसे हम चल रहे हैं वो रहेंगे नहीं रहेंगे, वी हैव नो आइडिया। तो आई से प्रे फॉर एवरीबॉडी कि सब अच्छा रहे, लेकिन सोल्जर्स के जैसे रहना चाहिए कि यार प्रिपेयर फॉर द वार। वार नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपना काम कैसे छोड़ोगे? तो खासकर पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए आज चूंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज वैसे भी कम हो रही हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उस पे अपने आप को बढ़ाते रहें आगे। कल को जरूरत पड़ी तो यू कैन बिकम ए ग्रेट सपोर्ट टू द फैमिली, ग्रेट सपोर्ट टू द फैमिली। सर एक छोटा सा केस, जो प्रैक्टिकल केस है, आपके साथ शेयर करता हूं। एक लड़की ने लॉ किया है, 2 मिनट सर आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक लड़की ने लॉ किया, उसके बाद उसमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया लॉ में। शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन ए कोर्ट। उसके बाद करीब करीब 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद 6 महीने और प्रैक्टिस करती रही। हस्बैंड बैंकर, इतना अच्छा उनका काम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो 6 महीने के बाद हस्बैंड ने कहा कि यार अब तुम इतना तकलीफ क्यों उठाती हो, सुबह निकल जाती हो, रात को आती हो, कोर्ट की मारामारी, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, फ्यूचर इज ब्राइट, व्हाई डोंट यू सिट एट होम एंड एंजॉय लाइफ। और उनके साथ कोई इन-लॉज वगैरह कोई रहता नहीं था, दोनों ही थे, और बहुत अच्छा इंसान, पर्सनली बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा दोनों के बीच प्यार। उसके बाद इनकी जिंदगी चलती रही। वो लड़की भी बहुत करियर ओरिएंटेड नहीं थी, घर में बैठ गई। उसके बाद उनका एक बेटा हुआ। बेटा जब 4-4.5 साल की उम्र का था, तब तक हस्बैंड थोड़े सीनियर हो गए थे बैंक में। तो उन्होंने एक नया घर खरीदा। नया घर खरीदने के बाद उन्होंने उसका गृह प्रवेश पूजा किया। उसके बाद हस्बैंड शाम को बोले कि देखिए कल मेरा पुणे में मीटिंग है, टीम का मीटिंग है, तो मैं निकलता हूँ। वो अपनी कार उठा के पुणे की तरफ चल दिए।
बहुत सारे लोग आशीर्वाद देने आए थे, नया घर है, ब्लेसिंग्स के लिए साथ पूजा वगैरह, गृह प्रवेश सब बढ़िया हुआ। ये हस्बैंड गए, रात पूरा निकल गया, कॉल नहीं आया, वाइफ ट्राई करते रही, कॉल नहीं आया। सुबह उनको हॉस्पिटल से कॉल आया कि हस्बैंड हैज मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट। ये केस मैंने हैंडल किया, मैं आपको बता रहा हूँ सर। सीरियस एक्सीडेंट हुआ। शी हैड गॉन देन टू द पुणे, जहां से कॉल आया था, वहां जाके देखी हस्बैंड आईसीयू में था, ब्रेन ऑलमोस्ट वर्किंग बंद कर दिया था। करीब करीब महीना 1.5 महीना वो आईसीयू में रहे। उसके बाद जनरल वार्ड में काफी टाइम तक है, उनके अपने इंडिविजुअल वार्ड में। और टोटल 3-3.5 महीने के बाद वो बाहर जब आए तो डॉक्टर सेड ये जिंदगी भर काम नहीं कर पाएंगे। अगर इनकी बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी चली तो शायद ये अपने पैरों पे चल के अगर अपना मॉर्निंग रूटीन्स कर लें, नेचर्स कॉल कर लें तो बहुत बड़ी बात है। बैंक ने नौकरी से निकाल दिया, घर पे बैठे और घर पे बिल्कुल वेजिटेबल की तरह। अब ये मेरे को पता कब चला, किसी ने उनको रेकमेंड किया कि आप डॉक्टर नील से मिलिए। हाई डिप्रेशन में चली गई लड़की, क्योंकि पिछले 6 साल से करीब काम पे नहीं गई थी। उसके बाद उसको 2 बच्चों को संभालना था, एक तो पति जो बच्चे से भी बुरी हालत में था, और दूसरा उसका खुद का बेटा। आज इतने गर्व से आपको कहता हूं, इतनी अच्छी उसकी हीलिंग हुई है। शी इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। जुड़ गई साथ में, 6 महीने लर्निंग की, साइकोलॉजी को समझा उसने, लड़ाई की साथ में। आज वो ईएमआई भी पटा रही है, पति को भी देख रही है, एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। शी इज प्रैक्टिसिंग बैक इन कोर्ट। एक लाइफ को मैंने देखा है कि एवरीवन शुड ईट देयर ओन। हर एक को अपना कमा के खाना है। ये हेलो, हाँ जी, ऑडिबल। हाँ, हर एक को अपना कमा के खाना है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तभी जाके हमारी लाइफ बनेगी, नहीं तो इट बिकम्स सच ए बिग चैलेंज। इट बिकम्स, हमें कुछ भी नहीं पता सर। हम बहुत ज्यादा लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, बहुत ज्यादा। आज आपके कॉल आने के पहले मैं कनाडा के एक केस को एड्रेस कर रहा था। वो लड़की अभी आके मुंबई में फंस गई है अपने छोटे बच्चे के साथ, हस्बैंड कनाडा में है, और अभी वो लंबे समय तक नहीं मिलेंगे, एंड शी इज अंडर डीप डिप्रेशन। तो जो काम करने वाले हैं उनको लड़ने की ताकत होती है, वो चीजों को संभाल सकते हैं। शी इज अंडर डीप डिप्रेशन, बता रहा हूं। ये लेडी जिसके साथ आज मैंने पहला सेशन किया था करीब 1.5 घंटे का, शी से सर बचा लीजिए, नहीं तो मुझे लग रहा है कि सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं। कनाडा में खुद के दम पे एमएस इन इंजीनियरिंग करके गई हुई, अपने दम पे जॉब करने वाली लड़की आज डिप्रेशन में गई हुई है, क्योंकि उसने छोड़ दिया सब कुछ। जब पति कमाने लगे सब कुछ छोड़ दिया, बोले हमें क्या जरूरत है। तो लाइफ बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो कहता हूं जब तक संभव हो प्रैक्टिकली अपने को एक्टिव रखिए, अपने अंदर की कला को जागृत रखिए। कल पता नहीं, हम तो प्रे यही करेंगे किसी की लाइफ में बुरा ना हो, लेकिन कब किसको जरूरत पड़े ये पता नहीं। तो आवर नॉलेज, आवर कैपेबिलिटीज, आवर स्किल्स आर ओनली द थिंग्स व्हिच कैन सेव अस, नथिंग एल्स। तो अच्छा शरीर हो, अच्छा दिमाग हो, और काम करने का जज्बा हो, काम करने की इच्छा हो कि मुझे करना है काम। आई डोंट वांट टू ईट फ्री लंच। मैं बहुत ज्यादा इस बात को बोलता हूं, फ्री लंच मत खाओ। और वो फ्री लंच का मतलब है कि आई एम क्रिएटिंग माई ओन फूड। कोई लेडी अगर घर में भी काम कर रही है तो शी इज नॉट ईटिंग फ्री लंच, बट काम कर रही है। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आज ये हालत है क्योंकि बहुत कुछ है, और सबसे ज्यादा तकलीफ में वही आ रहे हैं जब चीजें खराब होती। तो कीप वर्किंग एज मच एज पॉसिबल। बाकी आई से कि लाइफ इज योर्स, चॉइस इज योर्स। ये आपकी चॉइस है। कुछ भी डिसीजन आप लेंगे, हर एक चॉइस का एक एंड रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, हमें को भुगतना है, किसी और को फर्क नहीं पड़ता। इरफान जी चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 रुपए का इंडिया को फर्क नहीं पड़ा। ऋषि कपूर चले गए, किसी को फर्क नहीं पड़ा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज मैंने मिला हूं पर्सनली, जिनके पैर छुए, लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम, उस टाइम यूनिफॉर्म में था, वो चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो खुद के लिए समझो, हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए क्या करना है। इस लेवल पर फोकस होकर काम करने से ही लाइफ आगे बढ़ सकती है। दैट्स व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन नोइंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ लाइफ इज। आई थिंक सर, रोशनी, कोई एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? रोशनी, am I audible? Yeah.
Yeah, would you like Actually, to? I thought of asking. I thought it would be like a general question. Yeah, sure. So because I'm not into corporate field yet, so if I'm not wrong, I will ask that question. Like as Neil sir is into so many different roles. Okay, so how he works, as he said before, he is working from like 10 to 1 a.m. like in the midnight. How does he balance both the professional and the personal life? I mean, the work-life balance. How does he manage that? Yes, Okay. Neil sir, your question. आपको पसंद? This is a wonderful question, and I Thank love you. this question. Thank you. Thank you. Okay. Now, work and life both are not separate. First of all, कई गुरुओं ने हमको बहुत टोपी पहनाई है. They have misguided us. We have been taught wrongly that there is a work and life, both are different. वर्क को निकाल के देखिए, अपने लाइफ से लाइफ का कोई फायदा नहीं मिलेगा. टेल योर हस्बैंड टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब एंड सिट इन फ्रंट ऑफ यू 24 hours, you will realize there is no life. Okay. Lot of people are into wrong concept because our many gurus were idiots. They did not teach us rightly. Work and life is one. जब आप काम को एंजॉय करते हो तो जो 15 मिनट आप परिवार के साथ इतना प्यार होगा आपके पास, आप अपनी वाइफ को कभी गलत नहीं बोलोगे, उसको थैंक्स बोलोगे 24 आवर्स, अरे तेरे कारण कर पा रहा. तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ बैलेंस. बैलेंस कम्स ओनली व्हेन देयर इज अ डिसबैलेंस. आपकी सोच और आपके पति की सोच में बहुत ज्यादा फर्क हो और दोनों की रिक्वायरमेंट में फर्क हो, तब वर्क लाइफ बैलेंस वाला प्रश्न आता है. अगर वाइफ कह रही है थैंक यू सो मच, आप खड़े हो इसलिए मैं खड़ी हूं, वर्क 24 आवर्स, आई एम हैप्पी, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ मैन टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. अगर वाइफ काम करने वाली और हस्बैंड कह रहा है कि आई एम सो हैप्पी, मुझे चिंता नहीं, यू हैव गॉट योर ओन इंश्योरेंस इन लाइफ, मेरे बाद भी दुनिया चल सकती है, मुझे डर नहीं है, मुझे बच्चों की चिंता नहीं, परिवार की चिंता नहीं, तुम तो अपने आप में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो. वर्क लाइफ बैलेंस कहां पे है? जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते एक परिवार, तो वर्क लाइफ बैलेंस इज वर्क. जब हम काम कर रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, और सब एंजॉय कर रहे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई किसी से डिमांड नहीं कर रहा. इसलिए परिवार की काउंसलिंग, पूरे परिवार की हीलिंग बहुत जरूरी है. आज बहुत सारे कॉर्पोरेट से मेरे पास लोग आ रहे हैं. मैं कहता हूं अलग अलग चलोगे तो एक दिन तकलीफ में रहोगे, साथ में चलोगे तो वर्क इज लाइफ, लाइफ इज वर्क. तो जब भी जो भी आप काम कर रहे हो, आप पिकनिक में चले गए हो, एंजॉय कर रहे हो पिकनिक को, आप पार्टी में चले गए, पार्टी एंजॉय कर रहे हो, मूवी देखने बैठे हो, मूवी एंजॉय कर रहे हो, तो वर्क में ही लाइफ है, लाइफ में ही वर्क है. सच बता रहा हूं, एक चीज को अलग करके देखिए, थिंक अबाउट योर हस्बैंड. ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूं. आज नौकरी उनकी गई और सामने बैठ के बोले लेट्स टॉक, लेट्स एंजॉय. कितनी देर चलेगा बेटा, कितनी देर चलेगा? देन आप बोलोगे नहीं थोड़ा भी खाना बना के, तो नहीं बेटा अभी लेट्स टॉक, यू आर टेलिंग ना टाइम गुजारना है, लेट्स टॉक. तब आप बोलोगे जरा वॉशरूम जाना है, नहीं बेटा लेट्स टॉक. पागल हो जाओगे. कर्म भूमि से अच्छी जगह कुछ भी नहीं है. इसलिए कर्म पे ध्यान दीजिए. और आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, उनको काम पे ध्यान देने बोलिए, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश मत कीजिए. इट विल बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग व्हाट यू कैन गिव टू योर हस्बैंड इज टेल हिम आई लव यू एंड आई नो यू आर वर्किंग फॉर अस, आई एम वर्किंग फॉर यू. तो चाहे मिले न मिले, हम एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं. एंड आवर लव कैन नेवर गो डाउन. हम कभी कमजोर नहीं होंगे. तो जब एक दूसरे को हम प्यार लिटरली देते हैं तो काम करने वाले को तकलीफ नहीं होती. सच बता रहा हूं, जब मेरी वाइफ को कॉल जाता है, कई बार वो फोन पिकअप करती है, कई बार सेशन में हो तो फोन फॉरवर्ड रहता है उनके पास, दूसरे जब मैं हॉस्पिटल में रहता तो असिस्टेंट उठाते हैं. जब कोई कॉल करता है और बोलता है घर को थैंक यू बोल दीजिएगा, हमारा परिवार अच्छा हो गया, हमारे घर में खुशियां वापस आ गई, हम लोग का रिश्ता अच्छा हो गया. तो वाइफ को इससे अच्छा सुनने क्या चाहिए? अगर वाइफ ये सुनती कि दारू पी के पड़ा हुआ है, मोलेस्टेशन करके आ रहा है, वहां पे जेल में पड़ा हुआ है, वैसा नहीं. आप रात को 1 बजे 1:30 बजे भी जब काम करते हैं ना, तो अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जब पता रहता है ना, तो घर एक इबादत घर में बदल जाता है, घर एक मंदिर में बदल जाता है. सो कई चीजों को नए तरीके से आपके जनरेशन को सीखने की जरूरत है. देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस रिक्वायर्ड. एंजॉय योर वर्क, एंजॉय योर लाइफ. सर एक क्वेश्चन अब इसमें यंगेस्ट बंदी के लिए, हरमीत, कैन आई आस्क फॉर यू? हाँ,
ऐसा है, देखिए मैं देखता हूँ वो कहाँ पे है। अच्छा, हरमीत, हाँ हरमीत दिखाई दे रही है। बहुत यंग जनरेशन, बहुत मेहनती है। हाँ। सबसे ज्यादा मेरे से बहस कोई कर पाती है पूरी कंपनी में, अकेली वही है। सबसे तो ज्यादा सैल्यूट टू हर, सैल्यूट, आपसे बहस की तो सैल्यूट टू हर। सबसे ज्यादा पंगे कोई मेरे से ले सकता है अकेले तो वही है, और कोई नहीं ले सकता। अच्छा। मैं एक चीज देखता हूँ, हार्ड वर्किंग भी है और क्रिएटिव भी है। और सर सबसे बड़ी बात है, देखिए इन आज देखिए प्रॉब्लम क्या है सर, आप और हम लोग समझते हैं बिकॉज वी हैव चिल्ड्रन एंड हमें ये पता है कि हमारे ग्रोन अप चिल्ड्रन है जो इनकी एज के बराबर के हैं या इनसे उम्र में ज्यादा आपके तो हैं। तो ऐसे में मेंटल स्ट्रेस से आदमी बहुत गुजरता है। आज ब्रेकअप, हुकअप, टाइम, मतलब जितना बोलिए सब आज इसी उम्र में सबको आज रिलेशनशिप मेंटेन करना है। भाई बहन से भी झगड़े होने हैं, दोस्त से भी झगड़े होने हैं, कोई रास्ते में छोड़ जाएगा, कोई रास्ते से चला जाएगा, मतलब अंदर से आदमी स्ट्रेस में रहता है। वो स्ट्रेस में कई बार सोचता हूँ कि काम पर भी आता है आदमी का। इंटेंशनली किसी का ये नहीं होता कि कोई किसी को हर्ट करे, मे बी एज ए सीनियर पर्सन और मे बी एज वो कोई हमारे को डिस्टर्ब करे, लेकिन कई बार आदमी इतने कश्मकश में चल रहा होता है ना कि उसका दिमाग उस वक्त एक अलग स्ट्रेस में होता है। उस वक्त उसके सामने काम का अगर लोड कोई नॉर्मल भी होता है तो उसको लोड लगता है, लेकिन बंदा वैसे काम जानता है, मेहनती है। मैं ये कोई क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ जनरेशन का, आप स्पेसिफिक अपने से मत लेना। मैं जैसे अभी उसमें यंग में सोनम भी यंग ही है, ऐसा नहीं ओल्ड है वो। तो बाकी अगर देखा जाए तो अंजलि भी यंग ही है, अभी ओल्ड नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि ये सब अनमेरिड है अभी। ऑब्वियस सी बात है कि इनके सामने एक अलग लेवल का स्ट्रेस है। कईयों के बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो स्ट्रेस है, कईयों का बॉयफ्रेंड है तो मैनेज करना उसको स्ट्रेस है, उसके बाद काम करना, क्योंकि काम है ऐसी चीजें, उसे बॉयफ्रेंड का भी कॉल आना है, उसमें उसको भी अटेंड करना है, उसमें काम का आउटपुट भी, जो सीरियस लोग हैं वो सीरियस होते ही हैं, यार आउटपुट भी देना है, ये साला परेशान कर रहा है। अच्छा निकल सकते नहीं है घर के बाद, बाबूजी सिर पर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन परेशान कर रहा है। अच्छा अभी सारी तमन्ना है, घर में भाई भी चिड़ तो भी उसको झेलना है, तो सारे स्ट्रेस में आदमी चलता है। ये तो अभी की बात है, वैसे भी नॉर्मल स्ट्रेस लाइफ में आते हैं। हाउ वन शुड टेक एट दिस एज विद दिस काइंड ऑफ स्टेटस, हाउ वन शुड रियली डील विद दिस सिचुएशन, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर नॉट मैरिड, referring 2-3 names, that's why I said how they should deal with situations. Okay, wonderful question. Thank you so much, sir. It's a very enlightening and absolutely आज के हिसाब के right question है। सबसे पहले एक चीज समझ जाइएगा लाइफ में, इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ, खुद के ऊपर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। इसलिए SIP शुरू कीजिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और मैं फाइनेंशियल SIP की बात नहीं कर रहा हूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको मैं कहता हूं कैपेसिटी बिल्डिंग, अपने अंदर की क्षमताओं को बढ़ाने वाली बात। रोज अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का एक ही तरीका जो बहुत आसानी से अवेलेबल है, हमारे टाइम पे उतना नहीं हुआ करता था, दैट इज चूज ए मेंटर। किसी एक मेंटर के साथ जुड़ जाइए। रोज का अगर आप मेंटल हाउसकीपिंग नहीं करेंगे, रोज का वॉशिंग नहीं करेंगे, कम से कम हफ्ते में एक बार आपको कॉल करना चाहिए उस मेंटर को। वो मेंटल हाउसकीपिंग आपकी करते हैं। आज वो जो लेडी कनाडा की कॉल की, शी इज नाउ 40% बेटर देन व्हाट शी वाज। शी सेड सर दिखाई दे रहा है कुछ कर सकती हूँ। आओ अनदर 2-3 सेशंस, उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। तो आप जितने यंगस्टर्स, क्या मैं ओल्डेस्ट की बात कर रहा हूं जिसको कल भी मरना है, हैव चूज ए मेंटर। आपकी लाइफ में एक गुरु होना चाहिए जो आपकी तकलीफों को सुने, जो आपकी तकलीफों को बाहर डिस्कस ना करे, कॉन्फिडेंशियल रखे, आपका रेस्पेक्ट करे। इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंशियलिटी की। आप डिस्कस कर सके और आपको आंसर मिल सके, आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो एक दिन ब्लास्ट होगा, इसका कोई एक मंत्र नहीं है। इसलिए सर मैं एक ऑनलाइन मॉड्यूल बना रहा हूं, हाउ टू कम आउट ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन्स। बाय मे एंड मैं उसको लॉन्च कर रहा हूं, विच इज प्योरली ऑनलाइन, एनीबडी फ्रॉम द वर्ल्ड कैन ज्वाइन। वो वाले मॉड्यूल्स जो जिसको मैंने सेल लेवल हीलिंग की बात की है, उसमें हर कॉन्सेप्ट के पर बहुत डिटेल में काम किया है। जो मेरे साथ जो लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनके साथ भी वही चलाता हूँ, सेल लेवल हीलिंग। एक पॉइंट, तो जब मैं उसको ऑनलाइन कर दूंगा तो आपको बता दूंगा, यू हैव ए चॉइस। लेकिन बिना मेंटर के आप रहेंगे, ये मेरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस कहता हूँ। मेंटर के साथ नहीं रहेंगे, किसी मार्गदर्शक के साथ नहीं रहेंगे, तकलीफ में ही रहेंगे। तो क्यों तकलीफ उठा रहे भाई, किस लिए जी रहे हैं? तकलीफ उठाने के लिए। किसी का मार्गदर्शक उसकी मदर हो सकती है, लड़कियों की मदर सबकी नजदीक होती है। किसी का नहीं सर आई डोंट एग्री, क्योंकि मदर खुद मार्गदर्शक नहीं बन सकती। कारण है कि उनको खुद मार्गदर्शक की जरूरत होती है। आज सबसे ज्यादा माताएं तकलीफ में। तो मैं ये कहूंगा कि मेंटर शुड बी ए पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम द फैमिली, 100% फैमिली से नहीं होना चाहिए। ओके, ये गारंटीड है सर, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं इस फील्ड का, बता रहा हूं। मेंटर फैमिली का ना हो, मेंटर फ्रेंड भी ना हो,
the other point मेंटर शुड बी ए पर्सन जो थर्ड पर्सन हो, जो आपकी लाइफ को न्यूट्रल होके देखे, क्योंकि दोस्त दोस्त के रूप में देखता है, एक माँ बेटी के रूप में देखती है। अभी मैं आपको एक क्लासिक केस बता रहा हूं। सपोज मेरी सिस्टर है, उसके यहाँ बहुत झगड़ा हो रहा है उसके परिवार में, ये आपको क्लासिक केस बता रहा हूं, उसके यहाँ बहुत झगड़ा हो रहा है, वो मेरे सामने काउंसलिंग करने के लिए बैठेगी, मैं मेंटर बन गया उसका। जैसे ही मेरा दिल उसके लिए काम करना शुरू करेगा, मैं सोचूंगा अरे इसकी जो सिचुएशन है, इसको तो सही एडवाइस ये है कि उसको 4 टुकड़े काट उसके मुंह पे थूक और वापस आ, घर में बैठ, मैं बैठा हूं, उसको सहमत, तू रोने के लिए पैदा नहीं हुई है। लेकिन अंदर का भाई क्या बोलेगा? अभी मेंटर चला गया, भाई क्या बोलेगा? अरे यार ये घर छोड़ के आ गई तो मेरे यहाँ आके बैठेगी, उसके बाद हमारी रोटियां बटेंगी, इसके बच्चों को संभालना पड़ेगा, तो आई विल डेफिनेटली गिव अ रॉन्ग एडवाइस। बेटा मैरिज में झगड़ा तो होता ही है ना, जहां 4 बर्तने आवाज आएगी, संभाल ले, आई एम गिविंग अ रॉन्ग एडवाइस। सो मेंटर शुड नॉट बी रिलेटेड टू यू, ये पहला रूल है। इसलिए प्रोफेशनल की जरूरत होती है। इसलिए मेडिकल प्रोफेशन में भी, सर आप तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रहे हैं, वहां पे खुद के फैमिली मेंबर्स को सर्जरी करने नहीं देते हैं, एथिकली कहते हैं कि यार आप मत सर्जरी करो, किसी और से कराओ, ही मे बी द बेस्ट सर्जन इन दैट फील्ड, क्योंकि वहां इमोशंस काम करते हैं। तो मैं कहूंगा मेंटर शुड बी ए न्यूट्रल पर्सन, ए प्रोफेशनल, जो आपको दिल से गाइड कर सके बिना जज किए, आपको आपके ऊपर कोई लेबल बिना लगाए। इस पर एक सर पॉइंट, इस पर भी एक आपसे मुझे पूछना है, बिकॉज ऐसे मेंटर की बात आई तो अभी बीइंग अ लेडी, she may prefer a female person to, I tell you, I went through a problem with my daughter in the second year. She had some problem in the college, emotional problems, aap log ki age ke wajah. I straight away rang to my lady who I know from long number of years. She is a professional psychologist, a lady. So I called her, even I called you that time also, and I called her. I said, let me talk to her, get her talk to her. Then I said, you don't see as she is my daughter, you see as a client, and you give her advice. She gave a very right advice and she was able to come out of the trouble. Absolutely. Emotional troubles ऐसी होती हैं, कई बार आप मेल मेंबर्स से शेयर नहीं करो। अभी मैं ऑफिस में आता हूँ, आपकी कोई ट्रबल है फीमेल रिलेटेड, मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, मैं सीधा, मुझे कोई इशारा बता देता है तो मैं बोलता हूँ ठीक है, सॉर्ट इट आउट। तो ऐसा है कि जब आपकी, ये तो फिजिकल ट्रबल्स हैं, लेकिन मैं जब मेंटल ट्रबल्स जो आपकी होती हैं, जो आज जिसके कारण आप लोग इतने स्ट्रेस में आ जाते हो, दैट स्ट्रेस कैन इवन बॉयल ऑन टू अ नॉर्मल वर्क एज एबनॉर्मल. दैट इज समथिंग वेयर आई थिंक यू सेड a neutral person, maybe female will prefer a female that time, or a male who is matured and I have a small opinion here. My 80% of the clients or patients or the people who are coming to me are females. Okay. Generation has changed, people have changed. Okay. All of them, they discuss about their personal life, their physical life, their sexual life, their relationship life. Because एक जब genuinity दिखती है सामने वाले में, and once they know this person is pure in advice and he knows the subject well and he is not judging me. सबसे बड़ी बात होती है जजमेंट की. अगर आप किसी को जज नहीं कर रहे हो, लेबल नहीं कर रहे हो, आज जेंडर बेस खत्म हो गया सर. आज मेल, आज फीमेल डॉक्टर है, मेल डॉक्टर, लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट इंडिया आर मेल्स, नॉट फीमेल्स. आज कई गायनेकोलॉजिस्ट मेल्स आ रहे हैं. आज लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया आर मेल्स, टॉप 5. मैं क्या बोल रहा हूँ, आज लोग बड़े क्लियर हो गए. इनफैक्ट आई सैल्यूट द यंगर जनरेशन. पुराने जनरेशन से 1000 टाइम्स इनकी सोच बेटर है. दे वांट सॉल्यूशन, दे आर नॉट वरीड अबाउट द सेक्सुअल ओरिएंटेशन और देयर. हाँ, कुछ लोग अभी भी हैं जो मेल जो है मेल से ही बात करना चाहेंगे, फीमेल से ही बात करना पड़े, बट सर 90% ये खत्म हो चुका है. सो वेयर यू आर कंफर्टेबल यू शुड गेट अलाइंड. जहां आपका दिल आपको सपोर्ट करता है, जहां आपका माइंड आपको सपोर्ट करता है, एंड वेयर यू सी अ पर्सन जेन्युइन, वहीं पे आप दिल लगाइए. बट बिना मेंटर के रहना इज टेकिंग अ रिस्क. एंड व्हाई, जब कोई है, आज प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, व्हाई नॉट टू टेक हेल्प. क्यों तकलीफ उठाएं? हर चीज का सोल्यूशन, आप एक प्रॉब्लम बताइए उसका सोल्यूशन है, बट वो सिर्फ प्रोफेशनल के साथ आप डिस्कस कीजिए. बट डोंट डिस्कस विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव. फिर 4 बात 4 जगह जाती है, पता है उसके यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, देन यू लेटर ऑन रिग्रेट. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सर सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये लोग चाहे 10 कमाते हैं, 12 कमाते हैं, 15 कमाते हैं, 20 कमाते हैं, 25 कमाते हैं, एनी अमाउंट, हाउ दे शुड टेक दिस अमाउंट इन टर्म्स ऑफ सेविंग, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन. मेनी टाइम्स ऐसे सेड ना, तुम क्यों कमा रही हो, जैसे आपने एग्जांपल दिया, यार वेल ऑफ फैमिली चल रही है, तो हाउ दे शुड टेक दिस काइंड ऑफ अमाउंट फॉर देम, whether they are contributing to the family, whether they have to invest on themselves, how the money should be seen. Work is one, we should be worship.
बट हाउ द मनी शुड बी सीन, बिकॉज मनी इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। आज सबको समझ में आ रहा है, किसी का 15 भी इंपॉर्टेंट है लॉकडाउन में जहाँ लाख रुपए नहीं आ रहा है, और किसी का लाख रुपए बेकार है जहाँ उसको काम नहीं है और घर बैठा हुआ है। तो इसलिए हाउ दे शुड टेक दिस मनी, बिकॉज लोग कहते हैं सेविंग करो, SIP में डालो, PPF में डालो। कोई कहता नहीं मैं तो ड्रेस पे खर्च करूंगी पूरे महीने, मेरी 6,000-8,000 में तो ड्रेस आती है, जूता मेरा 4,000 का है। तो अब ब्रांड्स के लिए जाओ तो सब चीजें खर्चे हैं, और आदमी आज की खर्च नहीं करेगा तो कब की खर्च करेगा? ओल्ड एज में तो खर्च करेगा नहीं, ना तो उसे ओल्ड एज में वैसे परफ्यूम चाहिए, ना तो वैसे कपड़े चाहिए। तो इसी एज में सजने का टाइम है, इसी एज में सेविंग भी कितनी होनी चाहिए, इसी एज में व्हाट शुड बी द वे ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द मनी व्हिच दे अर्न, एनी अमाउंट, हाउ दे शुड लुक एट दैट। I think that's the question which everybody should be thinking but not asking. Okay, let me answer you, sir. I will say enjoy your life full. खुद पे खर्चा कीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। You should love your life. लाइफस्टाइल को कम करके जीने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप में से कुछ लोग कल सुबह नहीं दिखोगे, ये लिख के दे देता हूँ। कुछ लोगों को उठा के लेके जा रहे होंगे। इतने सच्चाई है लाइफ की। आज आपसे इतने पावरफुल लैंग्वेज में बात कर रहा था, 1 घंटे में निकल जाऊंगा यहाँ से, दिखाई नहीं दूंगा। ये सच्चाई जिसने एक्सेप्ट की वो स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन सेल्फ। तो 2 चीज पे खर्चा कीजिए, एक तो शरीर अच्छा बने आपके, अपने स्वास्थ्य पे, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, इस पे खर्चा कीजिए, क्योंकि वही आपके साथ रहने वाला है। बाकी कब चले जाएंगे पता नहीं, और आप चले गए तो किसी चीज की जरूरत नहीं। दूसरा, एक डेफिनेट मैंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस देखा, इफ पॉसिबल अगर फैमिली सिचुएशन अच्छी है, मे बी 15% 20% सेविंग पे रखिए, जिसको आप ये भूल जाइए कि ये मुझे यूज ही नहीं करना है। तो वो अपना अपना कैलकुलेशन होता है। कुछ लोग 5% ही रख पाते हैं, बेचारे बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं फैमिली को, उनके पैसों की जरूरत है। कुछ लोग नहीं कर पाते, वो भी ठीक है। सो लिव इन द प्रेजेंट बिकॉज यू डोंट नो टुमारो, बट लिव इन द प्रेजेंट, डोंट वेस्ट द प्रेजेंट। कि आप फालतू के खर्चे मत कीजिए। जो चीज एक्स से हो सकती है उसको जबरदस्ती पब्लिक को दिखाने के लिए वाई पे जाएं, या किसी के साथ कंपटीशन के लिए आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं उस लेवल पे, वो एडवाइज नहीं करूंगा। बिकॉज फाइनली इट्स मनी, योर ओन हार्ड एंड मनी। तो खुद पे जरूर खर्चा कीजिए, एंजॉय कीजिए, फ्रीक आउट कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा अगर बचता है 5%, 10%, 20%, कुछ लोग 30% तक बचा रहे हैं, बचाइए। लेकिन वो ऐसा बचाइए कि उसको बचाते टाइम आपको दुख ना हो कि यार मुझे अपने कहीं फैमिली में कंट्रीब्यूट करना, तो वो भी इम्पोर्टेंट। वही खुद पे खर्चा, मतलब अपने पे और अपनों पे। व्हेन आई से खुद मींस अपना और अपनों का, मैं कहता हूं हमेशा वो खुद पे आते हैं, वो हमारे हैं, है ना। कोई हमारे घर में तकलीफ और मैं सेविंग पे डाल रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं निकला ना। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग अंदर पूछने की हिम्मत नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं पूछता हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ। 27 एज हो गई है, 20 एज हो गई है, 29 हो गई, शादी नहीं हो रही है, ठीक है, और मम्मी पापा कब शादी कर देंगे, और शादी होगी कि नहीं होगी, तो अभी मेरा फ्यूचर है कि नहीं कुछ, मतलब ये अंदर टेंशन होता है ना, बीइंग लेडीज, नॉट नेमिंग एनीबॉडी। और हमारे यहाँ सब इस दौर से गुजरी हैं, ठीक है, हमारे यहाँ सब इस दौर से गुजरी हैं। तो अभी किसी लास्ट में 29 की एज में जाके हुई, किसी के 20 की एज में जाके हुई। तो ये एक स्ट्रेस लेवल आदमी में रहता है कि आजकल शादी की एज बढ़ चुकी है, वो 20, 21, 22 और 18 वाला जमाना चला गया। 28 और 29 और 30 में भी कर रहे हैं, और कई लोग नहीं भी कर रहे हैं। देखिए कितने सक्सेसफुल साधु बनी हुई है सब, और इतना अच्छा कमा। मैं इनको बोलता हूँ प्रोफेशन इतने आ गए हैं कि अगर आदमी को सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आज वो देखो आनंदमयी माँ और कितने सारे बैठे हुए हैं। मैंने कहा आपको अगर सेटिस्फैक्शन काम के प्रति ढूंढना है या आपको जिंदगी में बिजी होना है, तो मैरिज इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। Marriage is required. If it happens, it's fine. Many times destiny has not written it and you have not anchored the destiny. So it doesn't mean that you feel frustrated or depressed. तो वो सब चीजों के लिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे अच्छा आंसर कोई नहीं दे सकता, और मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, कोई हर्ट आउट फील मत हो। नहीं, ठीक है, I fully agree. 26, 27 कोई भी एज है, मैरिज चाहे देर में होती है, चाहे नहीं हो रही है, चाहे नहीं करनी है, या जो भी है, how one should take this life at, and this marriage is the only solution. Okay. अब मैं थोड़ा सा सीरियस आंसर देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं मुझसे, और मेरे बहुत सारे पेशेंट इस चीज से गुजर रहे हैं। मैरिज का जो पहले का कॉन्सेप्ट था वो इसलिए था कि गर्ल्स वेर यूजलेस मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम सेल्फ सर्वाइवल, ठीक है ना सर। उनको किसी न किसी कंधे की जरूरत होती थी जीने के लिए, इसलिए पिताजी लोगों का एक वर्ड होता था, पापा बोलते थे मेरे बाद तेरा कौन। आज वो पिता जो ये कहता है मेरे बाद तेरा कौन, सबसे कमजोर पिता है, सबसे यूजलेस पिता है, उसने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। इसका मतलब, अरे बेटा इतनी ताकत तुझे दी है कि तू 50 को संभाल सकती है, तुझे किसी की जरूरत नहीं।
इस लेवल पे आज लड़कियों को मैं देख रहा हूं, देयर आर वंडरफुल पावरफुल पीपल। हाँ, एक परिवार हो, एक आपका अपना कोई हो, सही वक्त पे या जब भी होना हो, वो एक कंप्लीटनेस अगर आपको लगता है तो उस पे काम कीजिए, लेकिन जरा सा भी परेशान मत होइए कि आपकी शादी नहीं हो रही है या हुई नहीं है। सच बता रहा हूं, अगर नहीं हुई है तो वन वे यू आर लकी, क्योंकि मेरे ज्यादा पेशेंट जो हैं वो शादीशुदा है। ऐसी बैंड बज रही है। तो ये क्या आपके साथ होने वाला है आज के डेट में भी, इवन लव मैरिज 6-7 इयर्स के प्यार के बाद, कोर्टशिप के बाद मैं देख रहा हूं पीपल आर सफरिंग। तो मैरिज इज अ गैम्बल इन एनी केस। तो कई लोगों को कहता हूं मैरिज के पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग करा लो, जिससे कि टूट फूट होने का चांस कम रहे। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इन पर सेलिब्रिटीज के बच्चे आ रहे हैं काउंसलिंग कराने के लिए मैरिज के पहले, तो उससे सफलता उनको मिलती है। इट इज लाइक लर्निंग एंड देन ड्राइविंग। अब डायरेक्ट हाईवे पे जाके ड्राइविंग सीखोगे तो खतरा बहुत ज्यादा है। तो मैरिज इज इंपॉर्टेंट इफ यू फील, otherwise lot of girls I'm proud of them, they say we don't want to be anybody's slave। हम किसी की नौकरी नहीं करना चाहते। बैंगलोर हैदराबाद में सबसे ज्यादा धंधा चलता है डाइवोर्स लवर्स का। तो वो भी एक प्रोफेशन है जिसको आप सर, हाँ, वो कारण यही है ना कि सर आज पेशेंस नहीं है, आज ना कोई समझने के लिए तैयार है, और आज हर दूसरी बात पे लोग निकल जाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा बात है ना, मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है सर, इसलिए एनकरेज करता हूँ मैरिज। क्योंकि शादी करोगे तो मेरे पास आओगे। I am now winding off with last question. Anybody wants to put any question from any side? नहीं सर, इसको कंप्लीट नहीं किया। एक ही चीज कहूंगा बेटा, खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो। इफ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, अंडरस्टैंड कोई बड़ा फोर्स है जो आपको शायद समझ रहा है कि अभी समय उचित नहीं हुआ है। आई बिलीव देयर इज अ फोर्स व्हिच इज गाइडिंग अस। आज हम जिंदा हैं तो उस फोर्स के कारण है। तो ट्रस्ट दैट आपका समय आएगा तो हो जाएगा, बट उसके लिए परेशान मत हो। परेशान हो जाओगे तो काम पे भी असर होगा, हेल्थ पे भी असर होगा, और सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ पे असर होता है। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, गुड फॉर यू, एंड व्हेन यू गेट मैरिड, गुड फॉर यू। आप नहीं शादी हो रही है तो भी मेरा कार्ड आपके काम आएगा, शादी हो जाएगी तो जरूर काम आएगा। बोलिए सर। हाँ जी, आई थिंक एनी अदर क्वेश्चन लास्ट, नाउ विल वाइंड अप आफ्टर दिस बिकॉज़ ऑलरेडी आप लोग का टाइम हो गया और सर का भी मैंने काफी टाइम दिया। कोई क्वेश्चन किसी को भी पूछना है? एनीबॉडी? शिवानी ऑडिबल है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो क्वेश्चन? ठीक है, इन दैट केस सो थैंक्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम, एंड रियली वी विल लाइक टू हैव सम सेशंस इन टाइम्स अहेड विद यू आल्सो, एंड फोकस एकदम आपको और सेशंस भी कुछ ऐसे मे बी इमोशनल इंटेलिजेंस और वो सब पर आपसे करवाएंगे। एंड रियली एनीबॉडी हैज टू से एनीथिंग बिफोर सर वाइंड्स ऑफ? एनीबॉडी कुछ बोलना है सर के लिए? हाउ डिड यू लाइक? थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए। ये छोटा सा एक फेस है, माय प्रेयर्स आर देयर, ये अच्छे से निकल जाए और वापस फिर आप लोग एंजॉय करें लाइफ को। और भी अच्छे से समझना चाहूंगी पर्सनली। बिल्कुल, इसलिए मेरा नंबर गुप्ता सर से ले लीजिए, नहीं तो आप लोग अभी नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूँ, लिख लीजिए। तो आप बताइए। 93 24 50 71 82 9324507182। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज के मोटिवेशन के लिए थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बाय 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 सर। अच्छा, ऐसा अब आप लोग रिपोर्ट बना लीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और साथ साथ रिपोर्ट बना ही रहोगे, ऑब्वियस ही बात है, आपकी तो तैयार रहती है। चलिए सर, बाय। चलिए, बाय, ओके, थैंक यू, बाय बाय। मेक योर रिपोर्ट, आप लोग रिपोर्ट बना लीजिए, और बस आज और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कुर्सी भी डाल दो। ये रिकॉर्डिंग क्यों चल रही है? अंजलि मैम, सुरभि मैम, म्यूट करो।
मैम लीव कर दूं मैं मीटिंग? कर दो कर दो रिपोर्ट रिपोर्ट मैडम 2 दिन की रिपोर्ट भेज देना प्लीज। ओके मैम, मैं अभी सेंड कर दे। जी बिल्कुल। Am I visible? Yes, no.